Again, warm welcome to all of you. I respect all of you, my dear teachers, and thank you for assembling here in your training session conducted by COE. So this is a pleasure, and I am here, Rakesh Kumar Sinha, get opportunity to introduce myself in front of you, and this is a proud moment. I get a topic where I can detail you. Sorry, electricity is not available, so I am not very much confident about the topic, but I will try to give message which is 100% perfect for you. My topic is today mental health in institution, that is school. First of all, we have to understand what are the topic contains. I can elaborate each and every points, and the contents of topic is definition of mental health, what is the factors affecting mental health, their sign and symptoms of mental health, school how they aware to learn teaching and learning process regarding mental health, promoting mental health in school, whole of school approaches, resilience building for students, and last key features of promoting mental health and well-being in school. So this is a very interesting and informative topic is here. I would like to present in front of you the topic with their contents. The first thing is how can we define mental health? Most of you are aware health is a concern where you can fit yourself in your day-to-day life, whether it is a physical health is concerned or mental health is concerned. Without its sources, it provides you to work, you communicate, you have to be productive when you have maintain yourself in regarding of mental as well as physical health. So we can define as a mental health, that is health is a state of well-being. अगर आपकी अभिरुचि नहीं है तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आपका हेल्थ का सही नहीं होना, आपका इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, इसका मतलब यू आर फीलिंग नॉट वेल, समथिंग इज नॉट रॉन्ग, समथिंग इज नॉट वेल is going with you, which is hindering you to improve yourself in your day-to-day life. So here mental health should be sound. Mental health doesn't mean you have an illness of mentally. You are having a problem of mental. यहाँ पर कोई बीमारी की बात नहीं किया जा रहा है. Why I have chosen this topic? Because to aware the students and teachers where is the wrong with the students, why they are not cope up with the situations. This is the important things. So we can say in terms of definition, it is a state of well-being in which an individual realize his or her abilities, can cope up with normal stress of life, can work productively, and is able to make contribution to his or her community. तो ये क्लियर है कि अगर आपका हेल्थ कंसर्न, अगर हेल्थ आपका सही नहीं है तो आपकी जो रुचि है, आपका इंटरेस्ट है, वो अफेक्टेड है और अपने काम को आप 100% प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. सो मेंटल हेल्थ रिफर्स टू कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड इमोशनल वेल बीइंग ऑफ मैनकाइंड. ये मनुष्य का सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है जहां पर कि इनहेरेंट होता है और इट इज गिवन बाय नेचर्स. और इसको हम लोग इस टर्म में समझेंगे कि अगर प्रोडक्टिविटी अगर कम है इसका मतलब दे आर सफरिंग फ्रॉम देयर हेल्थ प्रॉब्लम. वी आर एज डे टू डे वी आर ऑलवेज कंसर्न विथ आवर फिजिकल health, where we try to fit ourselves. We are daily
taking exercise, we are taking properly foods, we are concerned about health, but we never think about our mental ability. Day to day we are suffering. There are fast generation and we are working like anything. We are putting efforts daily 24 hours, so our ability of mentality is going to be worst. But we never think about it. We are only think about our physical activity. आज मेरी तबीयत खराब है, आज बुखार है, खांसी है, जो हम फील करते हैं बस उसी को हम लोग ध्यान में रखकर we go to the doctor and try to improve our physical health. But the main concern, we never think about the mental health, which is also important and equally important as physical health is concerned. Now, if we are talking about mental health, it is very important to know about what are the factors affecting mental health. सबसे पहले हमको जानना है कि अगर mental effect को mental health अगर मेरा सही नहीं है तो उसके कौन कौन से factors हो सकते हैं. So this is important. जैसे आपका stress, depression, anxiety, physical health and family history. I have put it 4 or 5 points. There may be more than 4 or 5 points, but these 4 or 5 points, which is a very common and related to your day-to-day activity, where you can find yourself, you are always find stress. So the first factor which is affecting mental health is that is a stress. So day to day in your working life, you feel by anyhow, any sources, you can get yourself as a stress. जैसे काम का लोड होना, अपने परिवार की चिंता होना, अपने बच्चे के पढ़ाई के बारे में सोचना. There are so many reasons. I cannot elaborate this because this is very common, everyone. Depression is the next factor, जहाँ अवसाद इसको बोलते हैं. So many people find themselves as a depressed because they are not getting regular success in life. So mostly they are find themselves as a depressed. If they are getting success, they can remove their depressions. Anxiety, the same word stress. Anxiety comes from stress. जब आप ज़्यादा सोचने लगते हैं तो वो anxiety में convert हो जाता है. Physical health. This is the main important part. Physical health. अगर आज जैसे हमारे विष्णु सर की तबीयत खराब है, फिजिकली नहीं फिट कर रहे हैं, तो मेंटली भी वो टायर्ड है. अनमोल सर, ही इज आल्सो नॉट फील गुड टुडे. सो दिस इज द प्रॉब्लम. दे आर अफेक्टिंग देयर मेंटल एबिलिटीज. दे कैन नॉट एक्सप्रेस वेरी फाइन या गुड एज फार एज कंसर्न इज. सो फिजिकल हेल्थ इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ. फैमिली हिस्ट्री. कभी कभी आपके परिवार में कुछ ऐसा पहले से हिस्ट्री है जो कि आपको हमेशा मेंटली डिस्टर्ब करता है. जैसे किसी घर में शादी नहीं हो रही है, किसी का जॉब नहीं लग रहा है, या कोई घर में विवाद है जो कि आप उसको सुलह नहीं कर पा रहे हैं, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. सो देन दे कैन क्रिएट योर mental disabilities. So these are the factors we are going to talk about one by one. Now the second thing is factors affecting mental health. So there are also so many factors. So one by one we can elaborate. There are 3 factors. First is psychological factors. Second is social factors. Psychological मनोविज्ञान जिसको बोलते हैं, वो आपके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं. दूसरा सोशल सामाजिक फैक्टर्स जो है वो भी आपके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं. और थर्ड है बायोलॉजिकल फैक्टर. ये जैविक फैक्टर्स जो है वो भी आपके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं. तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इसमें कौन कौन से पॉइंट हम लोग देखेंगे. हियर द फैक्टर इज अनएम्प्लॉयमेंट. ये साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक. अगर मेरा जॉब ठीक नहीं लगा है या मैं जहां काम कर रहा हूं आई एम नॉट सेटिस्फाइड देयर, सो इट विल क्रिएट देयर इज ए प्रॉब्लम मेंटली. सेकेंड इज फाइनेंशियल स्ट्रेस. ये तो बहुत कॉमन है ना. पंकज सर को अगर महीने में पैसा नहीं रहता है तो वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, है ना.
उनकी मेंटल प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है. सो यू कैन डिफाइन इन एनी टर्म्स. एग्जाम्पल, नेगेटिव लाइफ इवेंट. Second is pill burden. Pill burden, what is pill burden? Pill burden, that is the term when somebody is taking pills to sleep, to sound sleep. रात में उनको नींद नहीं आती है तो उसके लिए कोई दवा लेते हैं, है ना. बहुत सारे ऐसी दवा है जो कि रात में आपको स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आ रही है, तो यू ट्राई टू स्लीप, सो यू टेक एवरी डे. सो इसको बोलते हैं हम लोग पिल बर्डन. स्मोकिंग, बहुत लोगों को स्मोकिंग नहीं करेंगे तो उनको स्ट्रेस फील होने लगेगा, है ना. लैक ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, इस पर तो हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, जबकि ये बहुत ही सस्ते में अवेलेबल है और केवल आपको एफर्ट करना है. ठीक है. सो दीज आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर: अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल स्ट्रेस, नेगेटिव लाइफ इवेंट, पिल बर्डन, स्मोकिंग, लैक ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड वन इज सोशल फैक्टर. सोशल फैक्टर जिसमें सामाजिक कुछ ऐसे तत्व हैं जहां पर वो अफेक्ट करते हैं मेंटल हेल्थ को. द फर्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. दूसरे को देख करके उनके यहाँ गाड़ी है, फ्रिज है, टीवी है, ये आपको परेशान करता है. खास करके बच्चे में ये चीज कंपैरिजन होती है कि पापा हमारे यहाँ भी एक 4 व्हीलर होता है ना. अब पापा को ये सुनकर के अब रात में नींद नहीं आ रही है. एजुकेशनल स्टेटस, बहुत लोग के घर में एक आईएएस निकल जाते हैं, डॉक्टर निकल जाते हैं, सामने वाला देख करके जलते रहता है ना. उनको लगता है कि हमारे यहाँ कब कोई आईएएस डॉक्टर हो जाएगा. मैरिटल स्टेटस, विष्णु सर की शादी अभी नहीं हुई है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है और वो रात भर यही सोचते रहते हैं कि रोज वो लकी ड्रॉ निकालते हैं कि आज कोई हमको मिल जाए. ठीक है. तो मैरिटल स्टेटस भी अफेक्ट करता है मेंटल हेल्थ को. ठीक है. मेजर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, आपके घर में अगर कोई ऐसा विवाद है जो बहुत पुराना है और वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है तो इट कैन अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ. ठीक है. पुअर सोशल सपोर्ट, अगर कोई बैकग्राउंड आपका खराब है पहले से और समाज में आपको लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, आपको बूस्टअप नहीं करते हैं, बैकअप नहीं देते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं और रेगुलर आपको पिंच करते रहते हैं, दैट इज द फैक्टर, सोशल फैक्टर. ओके. द थर्ड वन इज बायोलॉजिकल फैक्टर. देयर आर आल्सो many points is here. You can say biological factors. The first is age. Age is also a factor of biological. सबसे बड़ी चीज है कि आप जैसे जैसे ग्रो करते हैं आपका प्रॉब्लम, आप अपने आप को टेंस फील करते रहते हैं. आज आप नाइन्थ में बायोलॉजिकल फैक्टर जो कि आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ करें चाहे नहीं करें, एज तो आपका ग्रो होते चला जाएगा. आज 25 के हैं, कल 26 के हैं, विष्णु सर और भी आगे हो सकते हैं, है ना. तो ये कहना मुश्किल है कि आपके एज को कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि अफेक्ट करता है मेंटल हेल्थ को. सेकेंड इज सेक्स. जेंडर प्रॉब्लम तो हर जगह रहती है ना. वो लड़का है, वो लड़की है, उसमें ये कंपैरिजन है. सो देयर इज सो मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ. सेक्स. कॉम्ब्री डिजीज. Combry disease and diabetic complication. This is also a factor of biological. अब देखिए diabetic complication जो है, डायबिटिक प्रॉब्लम अभी जो लेटेस्ट सर्वे है जिसमें कि हर एक 10 में से 6 या 7% जो है दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक्स. दिस इज द रिसर्च फ्रॉम अमेरिकन स्टडी, जहां पर ये कंफर्म कर रहा है कि डायबिटीज इज ए वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम एंड डे टू डे इंक्रीजिंग एंड इट इज नॉट लेस देन पैंडेमिक. ये एक तरह से पैंडेमिक होते जा रहा है. व्हाई इट इज प्रॉब्लमेटिक? क्योंकि आपको एक ये जो अंदर का जो है दिस इज ए हार्मोनल प्रॉब्लम.
डायबिटिक जो प्रॉब्लम है दैट इज हार्मोनल प्रॉब्लम, बट लेकिन ये क्रिएट कैसे करता है आपको मेंटल हेल्थ में? जैसे कि आप अगर शुरू हो गया आपका डायबिटिक, तो यू कैन बी कंसर्न अबाउट दिस डिजीज। अब आपको बराबर जो है टेस्टिंग कराना है, बराबर मेडिसिन लेना है एवरी डे। इफ यू कैन नॉट टेक दिस मेडिसिन, इट कैन अफेक्ट योर डिजीज। अब ये जो डिजीज को ट्रीटमेंट कराने के लिए आपको लंबा खर्च भी की जरूरत है। A long expenses can you deliver to treat diabetic. उसके बाद भी डॉक्टर इज नॉट सेइंग कंफर्म दैट यू कैन गेट क्योर। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी डॉक्टर ये नहीं बोलते हैं कि यू आर गोइंग टू बी सक्सेस। सो दिस इज द प्रॉब्लम बायोलॉजिकल विच इज अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग, खास करके फीमेल में जो फास्टिंग प्रॉब्लम है, ब्लड ग्लूकोज वगैरह ये सब जो है बढ़ना घटना, ये जो है ये खासकर फीमेल में ज्यादा है। डायबिटिक प्रॉब्लम भी जेंट्स में ज्यादा है, लेकिन उससे भी ज्यादा अभी फीमेल में बढ़ गए, क्योंकि उनका जो फूड हैबिट है वो जेंट्स से ज्यादा मतलब केयरलेस है, और जिसके कारण वो सफर करती हैं, जैसे कि उनका ग्लूकोज लेवल, ब्लड लेवल या जो फास्टिंग ब्लड है वो भी उनका बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होता है। बॉडी मास, किसी का अगर मास वेट अगर बढ़ गया है तो ये उनको मेंटल एबिलिटी में, डिसेबिलिटी में कन्वर्ट करता है। सो दिस इज आल्सो कंसर्न व्हेन यू कैन सफर एज ए मेंटल हेल्थ। सो देयर वी हैव एलोबरेट 3 फैक्टर्स, दैट इज साइकोलॉजिकल, सेकंड इज सोशल एंड थर्ड इज बायोलॉजिकल। नाउ we are trying to discuss about signs and symptoms of mental health. What are the signs and symptoms? How can you recognize we are suffering from mental health? बहुत लोगों को तो ये पता ही चलता है कि I am suffering from mental health. I have already said that this is not a disease. Mental ability, disability एक disease नहीं है, but this is a problematic for you when you are not caring yourself as a mental is concerned. जैसे आप फिजिकली दौड़ लेते हैं, फिजिकली फिट रहने की कोशिश करते हैं, सो आपका फिजिकल एक्टिविटी सही होता है, लेकिन मेंटली यू कैन नॉट केयर योरसेल्फ। उसको क्योर करने की जरूरत है। नाउ द प्रॉब्लम इज हाउ कैन यू गेट रिकॉग्नाइज। सो फर्स्ट द सेम इज एंजाइटी। अगर आपको बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, आप बेचैन हैं, किसी चीज को बार बार सोच रहे हैं, तो ये आपका एक फैक्टर हो सकता है, ये एक साइन एंड सिम्टम हो सकता है। मूड डिसऑर्डर्स, अभी आपको जैसे घर में बोला गया, बच्चे बोले कि हमको जाना है, सिनेमा जाना है, खेलने जाना है, यू ट्राई टू कन्वे देम कि नो दिस इज नॉट द राइट टाइम। उस बच्चे को ये नहीं समझ में आता है व्हाई द फादर और मदर इज सेइंग नो, है ना। उनको लगता है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम सम एंजाइटी, उनको लगता है कोई स्ट्रेस है, कोई दबाव है, प्रेशर है, वो खुल करके आना नहीं चाह रहे हैं। सो दिस इज अ साइन एंड सिम्टम व्हेन योर मूड इज डिस्टर्ब। विड्रॉल सिम्टम्स, आप खास करके बच्चे में देखेंगे, बहुत सारे बच्चे जो है कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उनको कुछ में ऐसा हैबिट होता है कि वो विड्रॉ करते हैं, ये हमसे मैथ नहीं बनेगा, आई कैन नॉट सॉल्व दिस मैथ, आई हैव नो इंटरेस्ट, वो सीधे उसको हटा देते हैं, और जिसके कारण बाद में फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम होता है। दे स्ट्रगल विथ दोज प्रॉब्लम विच आर नॉट टेकिंग सीरियसली इनिशिएटिव। आइसोलेशन, आप जब भी मेंटल हेल्थ के शिकार होंगे तो आप देखेंगे कि आप अकेलापन फील करेंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, है ना, लोगों से बातचीत करना कम हो जाएगा, अकेला जैसे कि किसी रूम में बैठे हुए हैं, कुछ चीज सोच रहे हैं, या किसी मोबाइल में आप खोए हुए हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोलेशन। क्वारलसम, आप हमेशा झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं जब आपका मेंटल एबिलिटी थोड़ा डिसऑर्डर होता है, आप एक दूसरे से किसी बात पर रिएक्ट करते हैं, खासकर हस्बैंड वाइफ जो है वो क्वारलसम हो जाते हैं, क्योंकि कभी उनको उनका बात अच्छा नहीं लगता है, कभी उनको अच्छा नहीं लगता है, शुरू में ठीक लगता है, बाद में नहीं। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्थ। नाउ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेंटल हेल्थ एज क्राइटेरिया इज कंसर्न? कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स। So sign and symptoms of mental health is divided into categories. जो फर्स्ट मूड डिसऑर्डर डिप्रेशन,
जिसमें कि आपका जो मूड है वो हमेशा चेंज होते रहता है, यू कैन नॉट कंसंट्रेट, जैसे कि आप लेथार्जिक हो जाते हैं, आपके मूड में बदलाव नहीं आता है, वो आप प्री कंसीव्ड आइडिया आपके माइंड में रहती है कि मुझे यही करना है। इम्पैक्ट थ्रू इंटरेस्ट, स्लीप एंड ईटिंग हैबिट्स, ये सारा जो है आपका मूड डिसऑर्डर, मुझे पास्ता ही खाना है, ये आपका जो प्री कंसीव्ड आइडिया है। अगर उस समय अगर कोई चावल रोटी ऑफर किया गया है तो आप उसको डिनाई कर देते हैं। सो 13% द प्रॉब्लम इज कमिंग ड्यू टू द फैक्टर मूड डिसऑर्डर और डिप्रेशन। द सेकेंड फैक्टर इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये खास करके यंग में जो एडोलेसेंस हैं, बच्चे हैं, वहां पर ये ज्यादा होता है कि वो अटेंशन नहीं हो पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं, और उनका हाइपर एक्टिविटी मतलब उनका कोई भी चीज एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा होता है। छोटे छोटे बातों पर वो अपने फादर से रिएक्ट कर जाएंगे, मदर को इनकार कर देंगे, आई विल नॉट डू, दिस इज नॉट माई जॉब, हाउ कैन आई डू, आई हैव टू बी रिक्वायर्ड सम थिंग्स। So this kind of mood that is known as attention deficit hyperactivity disorder, इसकी जो परसेंटेज है वो 9% यहाँ पर दी गई है। थर्ड इज ईटिंग फीडिंग डिसऑर्डर्स। कुछ ऐसे जो हैबिट्स हैं वो मोस्टली खास करके एडोलेसेंस में, बिकॉज इन एल्डर एजेस वी ट्राई टू बी कंसंट्रेट ऑन आवर फूड हैबिट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आवर फॉर ग्रोइंग आवर हेल्थ। तो दिस इज द कंसर्न अबाउट यंग जनरेशन, जहां पर एडोलेसेंस है, इन बिफोर मैच्योरिटी दे आर 3% एक्सट्रीम और एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स। किसी को बर्गर खाने की आदत हो जाता है, किसी को चाउमीन, है ना। इसके कारण क्या होता है, दे आर ऑलवेज गेट देयर डिसऑर्डर इन योर बॉडी, है ना। अपने बॉडी में उनका डिसऑर्डर शुरू हो जाता है, जैसे बॉडी लॉस हो जाना, बॉडी वेट बढ़ जाना, ये गेन हो जाना, फीलिंग ऑफ लो सेल्फ एस्टीम एंड लो कॉन्फिडेंस विद सेल्फ और बॉडी, मतलब वो धीरे धीरे अपने आप को एक्टिव नहीं रख पाते हैं और जिसके कारण उनका जो है कॉन्फिडेंस लूज होता चला जाता है। दिस इज 3%। द नेक्स्ट इज 32% दैट इज एंजाइटी। अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है कि आपके अगर डिसेबिलिटी है, मेंटल प्रॉब्लम है, तो उसमें कौन फैक्टर सबसे ज्यादा है, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो मोस्ट कॉमन यहाँ पर 12 से 18 वर्ष के बच्चे, क्योंकि हम लोग को स्कूल के फोकस करना है, ऐसे तो एंजाइटी आपको हर एक स्टेज में मिलेगा, लेकिन 32% इज मोस्ट कॉमन इन 12 to 18 years of age। इंटेंस फीलिंग ऑफ एक्सेसिव वरी एंड फियर। अभी सीबीएसई का रिजल्ट खराब हो गया, अभी सीबीएसई में हम टॉप नहीं कर पाए, या हमारा अभी इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट है उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं। तो जब जब आप बहुत ज्यादा चेंज करते हैं अपने लाइफ को, तो वहां पर आप अपने आप को स्ट्रेस फील करते हैं। वर्कलोड जो है आपके स्ट्रेस को बढ़ा देता है, और स्ट्रेस जो है एंजाइटी को बढ़ाता है। सो दिस इज द प्रोपोर्शनल रेशियो, एंड हियर आई हैव एलोबरेटेड द परसेंटेज रेशियो ऑफ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स इन यूथ। नाउ वी आर कमिंग school, the main domain is how teaching and learning process helps in mental health disorders। ये कैसे आपके मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को इंप्रूव करेंगे, इसके लिए हम लोगों को देखना है ना, क्योंकि देयर आर टू कंसर्न। अगर स्कूल की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, सो देयर इज अ वाइटल फैक्टर इज आइदर स्टूडेंट और टीचर, यही लोगों के बीच में होता है, और उनके बीच में एक मेंटल जहां पर डिसेबिलिटी आ जाता है, ठीक है। सो मेंटल हेल्थ प्लेज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अटेनिंग द लर्निंग आउटकम थ्रू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचर का काम है पढ़ाना, ये सभी कोई जानते हैं, लेकिन उस पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना ये बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप कोई मेंटल हेल्थ से प्रॉब्लम है तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि हाउ चिल्ड्रन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, आखिर इसका प्रॉब्लम क्या है, इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। अगर ये चीज अगर आप नहीं करते हैं तो इट कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग मेंटल हेल्थ, क्योंकि बच्चे में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होते हैं, उनको भी लगता है, एक दूसरे से इंफीरियर महसूस करते हैं कि मैं क्यों नहीं स्कोर अच्छा किया, उसने क्यों किया।
So every step stress is concerned, and we have to understand, because our domain is teaching, and we have to be correlate with mental health in teaching and learning process. The outcome can be magnified by promoting the proper system to develop and maintain a healthy atmosphere for teaching. हमको ऐसा एटमोस्फेयर बनाना है जहां पर कि इन्वायरमेंट ऐसा हो, हेल्दी इन्वायरमेंट हो, कि अगर उसमें मेंटल एबिलिटी कम है तो उसको भी इनहैंस किया जाए. There are possible causes affecting the mental health in it. सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि स्कूल में मेंटल हेल्थ का कैसे इनहैंस होता है, मतलब मेंटल हेल्थ से क्यों प्रॉब्लम से वो अफेक्टेड होते हैं बच्चे. तो इसका फर्स्ट रीजन है लैक ऑफ इंटरेस्ट. सबसे पहले बच्चे जो है, स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेनी सब्जेक्ट. उनका कोई एक आध तो खास जो है वो सब्जेक्ट जो है दे लाइक मोस्ट, और उसी को वो इंटरेस्टेड बना करके अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हैं. बट लैक ऑफ इंटरेस्ट अगर है तो ये भी उनका एक बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके माइंड में ये हमेशा रहता है कि हाउ कैन आई स्कोर इन इंग्लिश, हाउ कैन आई स्कोर इन मैथमेटिक्स, साइंस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर मी. सो दीज आर द फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ. फोर्स लर्निंग, अगर आप किसी को जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगा, है ना. स्कूल में आज तो स्कूल में किसी को न मारा जाता है न पीटा जाता है, किसी को स्लैप मारना भी बहुत टफ हो गया है, डांटना भी टफ हो गया है, तुरंत गार्जियन आपके पास आ जाते हैं. सो फोर्स लर्निंग इज नॉट इफेक्टिव. ये जो सबसे बड़ा जो है, ये भी क्लासेस में मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है, इनहैंस कर रहा है. फोर्स डिसिप्लिन, अभी मैंने लर्निंग की बात किया था कि आपको ये पढ़ाई पढ़ना ही है, आपको ये करिकुलम एक्टिविटी करना ही है, आपको ये स्पोर्ट्स लेना ही है, आपको ये स्पोर्ट्स में जीतना ही है. सो दिस इज काइंड ऑफ प्रिविलेज यू आर प्रोवाइडिंग टू योर स्टूडेंट एंड क्रिएटिंग ए मेंटल डिसऑर्डर्स. डिसिप्लिन, अभी आप कुछ भी अगर बच्चे गलती करते हैं, ट्राइंग टू बी, ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा नहीं होने से डिसिप्लिन एक ऐसा वर्ड है जहां पर यू हैव टू बी वेरी कंसर्न और स्ट्रिक्ट, ये होना चाहिए. लेकिन ज्यादा अगर डिसिप्लिन हम लोग खोजते हैं, कभी कभी ट्राई टू ओवरकम द डिसिप्लिन इन मैनर्स, सो वी ऑलवेज सफर दैट द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स. नेक्स्ट इज नॉन प्रोडक्टिव सेट ऑफ एक्टिविटी, नॉन इनोवेटिव एक्टिविटीज. कुछ ऐसी एक्टिविटी जो है जो कि आपके यूज का नहीं है, बट स्कूल इज प्रोवाइडिंग. अब किसी को आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये कॉमन थिंग है कि पूरे क्लास को अगर आर्ट्स दिया गया है तो वो आर्ट्स में इन्वॉल्व होना जरूरी है. तो ये एक ऊपर से जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, बहुत लोग जो है वो साइंस में लैब नहीं करना चाहते हैं, कंप्यूटर में लैब नहीं करना चाहते, उनको बोरिंग लगता है. किन्हीं को हो सकता है बहुत इंटरेस्टिंग लगे. सो नॉन प्रोडक्टिव एंड नॉन इनोवेटिव एक्टिविटीज, कुछ ऐसे एक्टिविटी हैं जो स्कूल प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स फील दैट दीज एक्टिविटी इज नॉट प्रोमोटिंग मी एज ए स्किल. लास्ट है बुलिंग एंड रैगिंग. बहुत सारे स्कूल इंस्टीट्यूशंस में रैगिंग की भी सिस्टम है जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स को इम्प्रूव करते हैं. और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट स्टूडेंट्स में क्या होता है, ठीक है इस बार हमारा रैगिंग हुआ है, हम भी जो आएंगे नए उनका भी रैगिंग करेंगे. जैसे शुरू में विष्णु सर पर काफी रैगिंग हुआ, आकाश सर बहुत बार टॉर्चर किए, राजीव सर, हाँ राजीव सर, अब वो दूसरे पर ट्राई कर रहे हैं, है ना. सो बुलिंग एंड रैगिंग इज अ सिस्टम इन ए स्कूल. ये इसको इम्प्रूव नहीं करना है, इसको आपको डिसऑर्डर को कम करना है, ट्राई टू बी मिनिमाइज. इसको खत्म ही कर देना ज्यादा अच्छा है, या अगर है भी तो इसको रेगुलर चेकअप की जरूरत है, नहीं तो इससे क्या होगा, लर्निंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट नहीं मिलता. नेक्स्ट, प्रोमोटिंग मेंटल हेल्थ इन ए स्कूल. अब हम लोगों को स्कूल अभी एक तो घंटा होगा, चलिए. ओके,
To promote a better atmosphere for proper rationalized set of activities are required for proper habit formation so that may abstain the individual being trapped into negative state. Why mental health and well-being is promoted in a school? मेरा क्वेश्चन है कि स्कूल में, मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूं कि स्कूल में मेंटल हेल्थ एंड वेल-बीइंग को क्यों प्रमोट करना चाहिए? I am asking questions to all of you. Why? Because all of you are teaching your students regularly. So मैंने इतनी सारी बातें की हैं. मेरा क्वेश्चन है, why mental health and well-being is promoted in a school? कौन बताएगा? Who will tell the answer? Because both are in stress. Children as well as teachers are also in stress. Very good. और anyone from this side? Neelu ma'am. Because education is not a short term theory, this is a long term. कोई भी अगर स्टूडेंट है तो वो फ्रॉम द नर्सरी टू अप टू BA और BSc, so this is a long journey. If in a starting phase, if a student can get their mental disability, उसको अगर हम फ्लोरिश नहीं करेंगे, उनको अगर हम अच्छी तरह से नहीं बनाएंगे, तो what will affect पूरा इंटायर लाइफ उसका जो है वो डैमेज होगा. So educational journey can be flourished when you are able to create in their minds to be effective that can be helped in future. आपके उनको कन्विंस करना, आपको उनको एक ऐसा वातावरण देना, आपको ऐसा इन्वायरमेंट फील कराना जिससे कि बच्चे को लगे ही नहीं कि हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा समय बिता रहे हैं. क्योंकि 5 to 6 आवर इज नॉट ए लेस आवर. 5-6 घंटे आप अपने घर से हट करके दूसरे घर पर आते हैं जहां पर एक इन्वायरमेंट आप देते हैं. ऐसे तो घर में भी पढ़ने के लिए बहुत सफिशिएंट जगह है उनको, बट home is not sufficient because that is not a real environment provided by your house or their parents. But teacher and school, ये जो नेचुरल आप बोलते हैं पीस की बात, तो ये घर में पीस नहीं होता है. अगर ऐसा रहता तो सब घर में ही स्कूल बना देते. लेकिन हाँ, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है ये पूरी तरह से टेक्निक है. आप किसी भी स्टूडेंट पे इम्पोज नहीं कर सकते हैं, सीखने के लिए वादे नहीं कर सकते हैं, उसको बोलने के लिए वादे नहीं कर सकते. आपको टेक्निकली उसको इस तरह से प्रमोट करना होगा कि बच्चा सिर्फ इंटरेस्टेड हो, उसको इंटरेस्ट है एजुकेशन में. वेरी गुड. और इसके लिए चाहिए कि उसको आप एंटरटेन करिए, एजुकेशन को एंटरटेन करिए कि बच्चा इंटरेस्टेड हो. और उसको इंटरेस्टेड करने के लिए ये जरूरी है कि उसकी मेंटल डिसेबिलिटी ना हो, मेंटली प्रिपेयर हो आपको सुनने के लिए, आपको रिस्पॉन्स करने के लिए, इंटरेस्टेड होने के लिए एजुकेशन में. उसके अंदर जो एजुकेशन है, लर्निंग का जो प्रोसेस है, उसको इस तरह से आपको बिल्डअप करना होगा कि बच्चा चाहे कि हाँ और सीखे और सीखे और सीखे. वेरी गुड. जब भी आप उस पर किसी चीज़ को इम्पोज करिएगा तो वो फिजिकली मेंटली हैरेस होगा, वो भागेगा उस चीज़ से. जनरल सी बात है कि जो मेंटल डिसेबिलिटी है वो पूरी तरह से आपको फिजिकली, मेंटली और बायोलॉजिकली इफेक्टेड करेगी. बिकॉज हमारा जो माइंड है वो पूरी बॉडी को क्या करता है, रेगुलेट करता है. तो आप मेंटली अगर फिट नहीं है किसी भी तरह से, या फिजिकली फिट नहीं है या बायोलॉजिकली फिट नहीं है, तो ये तीनों चीज़ें जो कम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के और एक चीज़ दोनों चीज़ों को अफेक्टेड करेगी पूरी तरह से. तो मेंटली अगर डिसेबल हैं आप तो आप उस एनवायरनमेंट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, या आप कॉन्शियस नहीं हो पाएंगे, क्लास में आपका अवेयरनेस नहीं रहेगा. इसी एज वेल टीचर के साथ भी होता है कि अगर मेंटल डिसेबल है आप, टीचर हैं, तो बच्चों के साथ आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, उनसे आपका इंटरेक्शन नहीं बनेगा. आप किसी न किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सफ़र करिए किसी चीज़ से, तो आपका उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाएगा. तीसरी चीज़ है कि टीचर अगर मेंटली डिसेबल है तो वो केवल इस चीज़ पे फोकस करेगा उसको क्या पढ़ाना है.
वो बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में ख्याल नहीं रखेगा, कौन बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है या उसको उसकी बात समझ में आ रही है कि नहीं, इस चीज़ को उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट के साथ टीचर को भी चाहिए कि वो मेंटली एबल हो, मेंटली, फिजिकली, बायोलॉजिकली प्रिपेयर हो सिखाने के लिए, और बच्चों को चाहिए कि वो मेंटली, फिजिकली, बायोलॉजिकली प्रिपेयर हो सीखने के लिए। Okay. थैंक यू। So thank you, Pankaj sir. You have given a lot of thought insights. So we are very happy and proud on you. So these are the reason we have to be promoting in school as a mental health is concerned. Okay? Promoting mental health in school. There is a 5 ways to well. अब हम कैसे करेंगे ये मैं फैक्टर बता रहा हूँ। अभी तक तो क्यों करना चाहिए और क्या रीजन है कि हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो है प्रोमोटिंग मेंटल हेल्थ इन स्कूल, दैट इज द 5 वेज ऑफ वेलबींग। मतलब अगर किसी बच्चे में इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट लाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, एवरी टीचर शुड बी कनेक्ट विथ स्टूडेंट। आप क्या करते हैं, कुछ जो स्टूडेंट वेरी लेबोरियस या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, यू फोकस्ड ऑन दैट। उससे क्या होता है कि उनका यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स नहीं, फाइन। तो कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट बिल्ड्स रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स। Connectivity you can provide. Most of the student, they are not 100%, they are not very intelligent, they are not more able, but you have to find out which one is not interested, which one is not scoring more. So this is your reason you can connect with each and every student. So first factor for well-being as a mental health is concerned, that is connectivity. Second one, teachers should be active. अगर आप सिर्फ कुर्सी पर बैठ जाएंगे और वहां से सिर्फ लेक्चर देंगे तो स्टूडेंट उतना मैच्योर नहीं है। उनके आपको प्रॉब्लम्स को समझना होगा, उनसे क्वेश्चनिंग करना होगा, उनसे बार बार ये पूछने की कोशिश करना होगा, व्हाट डिड यू फाइंड, है ना, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड। अगर ये आप नहीं करते हैं और सीधे आप अपना सिर्फ लेक्चर देते हैं, टाइम आपका ओवर हो जाता है, इट कैन नॉट इम्प्रूव मेंटल डिसेबिलिटी। ये उनके प्रॉब्लम को और इनहेंस करेगा, इंप्रूव नहीं करेगा और उसके प्रॉब्लम डिसऑर्डर्स को बढ़ा देगा। द नेक्स्ट वन इज हियर, कीप लर्निंग। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर इन टर्म्स ऑफ नॉलेज इज कंसर्न और यू आर गिविंग एनी अदर एक्टिविटीज। अगर आप बच्चों को लर्निंग अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। और सबसे बड़ा चीज क्या है कि उनका जो प्रॉब्लम है यू कैन नॉट क्योर। आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हैं कि उनका प्रॉब्लम को एज इट इज मतलब रखने के लिए आए हैं। तो जब तक उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा दे कैन नॉट इम्प्रूव। मेंटल डिसेबिलिटी होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि दे फील इंफीरियर टू द अदर स्टूडेंट दैट दे आर नॉट गेटिंग स्कोर्स। और यही चीज उनके पेरेंट्स में भी जाता है, उनको लगता है कि स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है। सो कनेक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, एक्टिविटी बी एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट एंड साइड बाय साइड कीप लर्निंग। आपको कोशिश करना है कि कुछ ऐसा मैं इंटरेस्टेड चीज पढ़ाऊं जिससे कि हर एक बच्चे का इन्वॉल्वमेंट जो है वो मोर देन 100%। उनको गिव, नेक्स्ट पॉइंट इज अ गिव। आप कुछ ऐसा दीजिए, आप देने के लिए उनको प्राइज तो दे सकते नहीं है, रेगुलर आप प्राइज नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप उनको कुछ ऐसा चीज दे सकते हैं जो कि उनको मोरली सपोर्ट कर सकता है। उनको कुछ ऐसा रिमार्क दे सकते हैं, वेल डन, you can keep it up, या you have done very well। कुछ इस तरह से आप उनको बार बार इनहेंस करते रहें तो उनके जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। वो अपने आप को फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, अपने आप को जो सैडनेस रहता है, लोनलेस रहता है, आइसोलेशन रहता है, वो सारा चीज धीरे धीरे उनका खत्म हो जाता है। एंड दे आल्सो ट्राई टू अटैच विथ यू। हमारी टीचर ने आज जानती है मम्मी क्या दिया है, आज मेरी मम्मी ने स्माइली दे दिया है, मेरी मम्मी ने एक्सेलेंट, मेरे कॉपी में एक्सेलेंट लिखा है। ये बहुत बड़ा चीज है। आप ऐसा थोड़ा कि उसको 500 रुपीज दे रहे हैं, सिर्फ अपने पेन से आपने क्या लिख दिया, वहां पर एक्सेलेंट लिख दिया। सो दिस इज द फैक्टर well-being which can improve the student which is suffering from mental health in school. Next is take notice.
Always try to be informative and try to get notice in periodic. आप उनको इंफॉर्मेशन भी दीजिए और उनसे भी इंफॉर्मेशन लीजिए, व्हाट डिड यू लर्न। अगर ये चीज अगर आप रोटेट करते रहते हैं, जैसे आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ाया, कोई चैप्टर पढ़ाया, उसी में से 2-4 क्वेश्चन आप खड़े करके पूछ दीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगा कि आई हैव डिड दिस लेसन एंड माय अप्रोच वाज वेरी गुड, दैट्स व्हाई द स्टूडेंट इज एबल टू गिव देयर आंसर्स। ये आपको फील हो जाएगा कि मैंने जो पढ़ाया है वो बच्चे को समझ में आ गया। जो स्टूडेंट अच्छे हैं, मैंने तो बहुत बार जो स्टूडेंट जो अच्छे हैं उनकी तरफ मैं देखता ही नहीं, नोटिस ही नहीं करता हूं, बिकॉज अगर हम क्वेश्चन का आंसर पूछे तो उन्हीं 5-6 का रेज होता है, जो ज्यादा तेज रहता है वही आंसर देगा। तो यहां पर आपको नोटिस करना है हु इज नॉट गिविंग आंसर, हु इज नॉट रेडी टू बी सॉल्व देयर आंसर, who is not ready to respond their answer. So these are the problem. So these are the 5 ways of to understand what is improving their well-beings in health. Okay. Some are the points, some sorts of activity that promotes independent, create expression, define field which is the learner must be comfortable and enjoying. कोशिश करना चाहिए कि जो भी आप लर्निंग दे रहे हैं, मतलब सिखा रहे हैं, वो बच्चे काफी आनंद के साथ सीख रहे हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई बर्डन नहीं फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि रोज उसको दे दिए 10 पेज आप राइटिंग लिखिए, अब वो बेचारा परेशान है। अभी यही हो रहा है सर। नहीं, ठीक है, समटाइम्स इट इज यूजफुल आल्सो, लेकिन एवरी टाइम यू कैन नॉट क्रिएट सम बर्डन्स। बच्चे को लगता है कि हमारे ऊपर बर्डन है। They are not trying to learn from them, but they are trying to be escape from them. These are the problems. So unnecessary burden देने से उनका mental health improve नहीं करेगा। Providing equal opportunities to everyone. कोशिश करना चाहिए कि सभी को बोलने का मौका दिया जाए, सभी को सीखने का मौका दिया जाए, सभी को बोर्ड पर आकर के आंसर सॉल्व करने के, जो अच्छे हैं तो वो तो बना ही देंगे। So there is a no question. रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स, टीचिंग जो प्रोसेस है, रिसोर्सेज है, वो एक रेस्पेक्ट का है। इन टर्म्स व्हेन यू गिव रेस्पेक्ट यू विल गेट रेस्पेक्ट। जब आपको रेस्पेक्ट मिलता है तो ये क्यों मिलता है? क्योंकि आप भी रेस्पेक्ट करते हैं, बच्चे को उतना ही आप अपना समझते हैं। आप उनको एक गाली दे के देखिए, कल से आपको भी गाली आ जाएगी, है ना। सो दिस इज द प्रोफेशन जहाँ की हम समझते हैं कि रेस्पेक्ट पैसे से ज्यादा है, जहाँ पर रेस्पेक्ट हम लोग पाते हैं, है ना। अगर हम बहुत अच्छे स्कूल में भी नहीं है, लेकिन हमारा जो पोजीशन है वो मतलब रिगार्ड्स है, वो किसी के माइंड में कम नहीं है। ये हमारे बेटे के सर हैं, वैसे हमेशा वो आपको डिमोन्स्ट्रेट करेंगे, किसी को बताएंगे कि हमारे बच्चे को यही पढ़ाते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, रेस्पेक्ट देना एक पॉजिटिव एटीट्यूड है जो आप बच्चे को सिखाते हैं। इन टर्म्स यू आर गेटिंग रेस्पेक्ट आल्सो। सो बिहेवियर, एटीट्यूड, रेस्पेक्ट, these are the factors which can influence every students in day to day life to promoting their disability। वहाँ पर डिसेबिलिटी को हटाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए हमारे स्कूल में ये सब होना जरूरी है। When a culture of well-being is prioritized across the whole school, community, positive social norms, behavior built with resilience building for a student। सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट्स को स्किल डेवलपमेंट के बारे में सिखाना चाहिए, कैसे स्किल को डेवलप किया जाए, है ना। कुछ ऐसे नेगेटिव इवेंट्स हैं उसको आप ओवरलैप कर सकते हैं। नेगेटिव इवेंट्स जो है आपके इन्वायरमेंट में या आपके स्कूल में, आपके घर में, उसको आप पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। हमेशा ट्राई टू कन्वे पॉजिटिव लोकल कनेक्शन, या सोशली उनको पॉजिटिवली कनेक्शन करना जरूरी है। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे को इन्वायरमेंट देना, दैट इज सेफ इन्वायरमेंट। आप जब बच्चे को घर से यहाँ छोड़ा जाता है तो वो ट्रस्ट करते हैं कि हमारा बच्चा कम से कम एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में है जहाँ पर वो सेफ फील करे। 6 घंटा अपने बच्चे से दूर रहना इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। लेकिन वो ट्रस्ट है जो उनको बिल्डअप करता है कि हमारे बच्चे जो है वो सेफ हैं, ऐसे प्रीमिसेस में है जहाँ की उनका
घर जैसा इन्वायरमेंट। लाइफ स्किल, जहाँ पर वो कोप अप कर सकते हैं, बहुत सारे बातों को सीख सकते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव को समझ सकते हैं, अपने स्किल के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हैं। The major factor I am talking about the COVID situation and mental health। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आया था वो कोविड के समय में आया था, जहाँ पर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम वाज क्रिएटिंग एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसेबिलिटी ऑफ योर मेंटल। जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ से लोग प्रॉब्लम हो गए थे, है ना। बहुत सारे बच्चे ने अपने स्टडी को ड्रॉप आउट किया। कोविड को प्रोटोकॉल को फॉलो करना अनिवार्य था, मास्क पहनना था, दीज आर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दोनों के लिए। स्कूल में भी अगर ओपन है तो वहाँ पर टीचर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, दे आर मोर कंसर्न अबाउट सेफ एंड ऑल्सो चिल्ड्रन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, सो बोथ आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल। Some of the tentative measures could be the following strategies may be taken। The post-COVID challenges, मतलब कोविड के बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया कि उनको फिर से एक नया स्ट्रक्चर देना, नया फैसिलिटी प्रोवाइड करना। जो बच्चे आपके स्कूल से चले गए हैं वो फिर आपके स्कूल में आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर जो बच्चे हैं उनको आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ मोरल सपोर्ट स्कूल को भी स्टेप लेना होगा ताकि आपके बच्चे मोरली सपोर्ट हो, उनको ये नहीं लगे कि हम अब पढ़ने आए तो फिर एक बर्डन आ गया, है ना, चाहे वो सोशियो बर्डन हो या इकोनॉमिक बर्डन हो। सो उनको ऐसा फील नहीं होना है। वी आर वर्किंग एज ए को रिलेटेड, मतलब दोनों को समझते हुए कि हाँ स्टूडेंट के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, टीचर के साथ भी हो सकता है, मैनेजमेंट के साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो वी हैव टू बी को रिलेट विथ ईच अदर। Now last, this is the topic here is key features of promoting mental health and well-being in school। तो सबसे ज्यादा की फीचर्स क्या क्या है, कौन सा ऐसा प्रॉपर्टीज है जो कि हम लोग मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, उनमें इंटरेस्ट डालने के लिए, बच्चे के जो माइंड है उसमें इंटरेस्ट लाने के लिए हम लोग स्कूल में कौन कौन से पॉइंट्स को देखेंगे। Getting ahead of mental disorders and offering supports to those who need to help at-risk students before their mental health issues become very serious। Promoting positive self-esteem, सबसे पहले तो उनको जो अंदर में जो नेगेटिव चीजें हैं उसको पहले हटाने की कोशिश करना, यानी उनका जो सोच है वो पॉजिटिव सोच बनाना है। Encouraging students, सेकेंड क्या है कि हर एक बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि आपको फूड जो खाना है वो हेल्दी खाना है। आप जो ये पिस्ता बर्गर ये सब जो खाते हैं इससे सिर्फ आपका फिजिकल हेल्थ ही नहीं हेल्पर होता है बल्कि मेंटली भी आप बहुत हैरेस होते हैं, है ना। ये अच्छा चीज नहीं है। यू कैन लॉस मेनी थिंग्स इन योर हार्मोनल। आप सबसे ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस में, है ना। किसी का दाढ़ी निकल जाना, मुंह छाना, ये सब जो है, तो उस पीरियड प्यूबर्टी जो पीरियड है उस पीरियड में बहुत सारे चेंजिंग आते हैं। तो उसमें ऐसे डिसऑर्डर जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है वो हार्मोनल चेंजेस है, और वो हार्मोनल चेंजेस को कौन प्रमोट करते हैं, आपका अनहेल्दी फूड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को स्कूल में ये बताना है कि कैसे पॉजिटिव माइंड का रहना है, निगेटिविटी नहीं रहना चाहिए। दूसरा, इंकरेज करना है स्टूडेंट को हेल्दी ईट खाने के लिए, मतलब कोई भी भोजन जो है वो स्वस्थ भोजन खाए। प्रोवाइडिंग आउटलेट्स टू रिलीव एंजाइटी, कुछ ऐसा चीज आप वातावरण बना दें, कुछ ऐसा करिकुलम एक्टिविटी कर दें जिसके कारण उसके अंदर में एंजाइटी स्ट्रेस जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, ठीक है। और उसके बाद प्रमोट स्कूल पॉलिसी दैट सपोर्ट्स मेंटल हेल्थ, कुछ स्कूल की तरफ से भी कुछ ऐसा पॉलिसी को डेवलप किया जाए ताकि बच्चे को, उनके पेरेंट्स को ये फील करें कि नहीं हमारा बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा डिप्रेस होके आया था लेकिन अब जो है स्कूल इसको केयरिंग कर रही है ना। आप उनको कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, है ना, उनको कुछ इस तरह से इनहेंस करें, उनके अंदर में जो स्किल्स हैं उसको चारों तरफ आप नोटिस में डालें। तो कुछ ऐसा करने से, पॉलिसी लाने से आपके स्कूल में जो हैरेस जो बच्चे हैं उनको मोरली सपोर्ट किया जा सकता है।
है ना। रैगिंग वगैरह अगर आपके स्कूल में होता है उसको बंद कराया जाए। रैगिंग ये सब जो है, बुलिंग, रैगिंग ये सब जो है, ये बच्चे को मेंटली हैरास करते हैं, तो ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ओपन डोर पॉलिसी, कम्युनिकेटिंग विद स्टूडेंट, हमेशा बच्चे के साथ आपको कम्युनिकेटिव होना चाहिए। टीचर्स को लगना ही नहीं चाहिए कि यहाँ दूसरे का बच्चा है ना। ये जैसे आपके घर में जो बच्चे हैं उसी तरह से स्कूल के भी बच्चे आपके ही। ओपनली एंड इन फ्री इन्वायरमेंट, और उनका जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो एकदम खुला होना चाहिए, स्पष्ट, ट्रांसपेरेंट, है ना। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, कोई अगर अदर सेंस ऑफ मीनिंग है तो वहां पर आपको उसको रोकना है, लेकिन अगर वो खुल करके कुछ बताना चाहता है, यू शुड वेलकम एवरी। ओके, सो दैट इज माय लेक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, and thank you for giving or concentrating on